Hello everyone, how are you all? I'm hoping that you all are safe and fine. Today again you are here with me Deepika, your science teacher. Yesterday or from last 2 days we are discussing our fifth chapter, that is rocks and minerals. Till now we have discussed about rocks, what the rocks are, how they are formed and how many types of rocks are there on the basis of their formation. So basically 3 types of rocks are there on the basis of their formation. First one is sedimentary rocks, first one is igneous rocks, second one is sedimentary rocks, and the third one and the last one is metamorphic rocks, which is the topic for today. Yes, so today's topic is metamorphic rocks. Metamorphic, the word meaning is a change of form, मीन्स कुछ भी चेंज होने वाला है यहाँ पर, ठीक है. एक्चुअली क्या होता है कि जैसे ये बाकी दोनों रॉक्स हैं, metamorphic rocks are formed by igneous or sedimentary rocks by change of their form. ये या तो igneous rock से बनते हैं या sedimentary rock से बनते हैं, उसके अंदर कुछ changes होने की वजह से. अब वो changes हुए कैसे? Actually क्या होता है कि when the layers are present one over the other, they produces the pressure on the beneath layer. The upper layer applies the pressure on the lower layer and the heat from the molten rocks. As we know that inside the earth hot molten rocks are present. So heat from this molten rock they are getting and pressure from the upper layers they are getting. So ultimately their mineral content will be changed. We know that rocks are made up of the minerals, different kinds of minerals make different kinds of rocks. So basically due to this high pressure and heat, their mineral content is modified or changed we can say and form the metamorphic rocks. क्या होता है कि ये हमारे पास लेयर्स हैं, या तो सेडिमेंट्री रॉक्स की हो सकती हैं या इग्नियस रॉक्स की हो सकती है, दोनों में से कोई भी हो सकती है, ठीक है. तो ये आपको पता है कि जब मैंने आपको कल जैसे नोटबुक वाला एग्जांपल दिया था कि काफी सारी नोटबुक्स को अगर मैं वन बाय वन रख दूं, एक के ऊपर स्टैक बना के रख दूं, तो क्या होगा, अपर लेयर विल अप्लाई द प्रेशर ऑन द लोअर लेयर, लोअर बुक. तो ऊपर वाली जो बुक है वो नीचे वाली बुक पे प्रेशर लगाएगी, तो प्रेशर उसको यहाँ से मिल रहा है. और अर्थ के अंदर आपको पता है कि मोल्टन फॉर्म में, हॉट मोल्टन फॉर्म में रॉक्स प्रेजेंट होती हैं, बिकॉज अर्थ के अंदर गर्मी बहुत ज्यादा है. तो यहाँ से वो हीट लेती है, हीट आई, प्रेशर आया, तो इसके अंदर क्या होता है, ये वाली जो लेयर्स होती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स की या इग्नियस रॉक्स की, वो मॉडिफाइड हो जाती हैं. मॉडिफाइड या चेंज होने को ही तो हम मेटामॉर्फिक बोल रहे हैं. तो बेसिकली ये बनती उन्हीं से ही है, लेकिन उसके अंदर कुछ चेंज होने की वजह से. तो इस प्रेशर और इस हीट के अंदर जो मिनरल्स होते हैं रॉक्स के, वो मॉडिफाई हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं और अल्टीमेटली मेटामॉर्फिक रॉक्स बना देते हैं. सो बेसिकली मेटामॉर्फिक मीन्स चेंज ऑफ फॉर्म. चेंज ऑफ फॉर्म किसका हुआ, या तो सेडिमेंट्री रॉक्स का हुआ और या तो इग्नियस रॉक्स का हुआ. Yes students, now our next topic is types of metamorphic rocks. How many types of metamorphic rocks are there? There are 4 types of metamorphic rocks. First one is marble. Marble, have you heard the name? Marble by which we are doing the flooring. पत्थर जिसको हम बोलते हैं white पत्थर, अलग अलग कलर का आता है. तो basically this is marble. तो ये marble होता है. Marble is made by the modification in the limestone. As I told you, metamorphic rocks are made by modification of some of the rocks. किसी भी रॉक के एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रॉक के मॉडिफिकेशन से बना है. तो मार्बल किसके मॉडिफिकेशन से बना है? इट इज फॉर्म्ड बाय द मॉडिफिकेशन इन लाइमस्टोन. लाइमस्टोन इज अ टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक. Okay, and it can be found in various colors, as you know that flooring can be done with the different kinds of marbles. So yes, it can be found in various colors and it can be carved and polished easily. Carved means you have to do something, मतलब खोदना. So yes, carved, it can be carved easily and it can be polished also easily. And it can be used to make the statues and buildings. As it is hard, as it is found in the different colors, so it can be used for various purposes. It can be used to make the statues and buildings. Now our next type of metamorphic rocks is slate. Slate and shale. Both the names are same. So yes, it is basically formed by the modification in the shale type of rocks. Shale are the sedimentary rocks and they are having the smooth texture because they are formed by the clay.
So yes, that's why slates are also having the smooth texture, and they are present in dark grey colors, and they can also be modified into thin sheets. That's why, because of this property, they can be used for making the writing slates. The earlier kids used these kind of slates to write something or to learn something. So yes, writing slates can be made up of the slate, and blackboard also, which we are using in our classroom, is made up of the slate, and our flooring roof tiles are also made by this slate. Now next one is nails. G is silent here. Nails. So yes, it is made by the granite, and it is found, actually what is happening when the modification occur in the granite kind of granite rocks, then different colors get separated out. So because of that, they form the dark and light patches. So there are separation of the dark and light patches in this kind of gneiss kind of rocks, and it is also used in forming the glitters because it is shiny appearance. It is having the shiny appearance. So yes, that's why it is a glitter type of structure is there. Last type of metamorphic rocks is quartzite. Quartzite are formed by the sandstone, and they are basically hard. Because of that, they can be used to make the statues, glass and ceramics. Okay, now I am repeating all the topic in Hindi. मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होती हैं वो 4 तरह की होती हैं: मार्बल, स्लेट, gneiss एंड क्वार्ट्जाइट। मार्बल जो है ये हमारा सुना सुनाया सा वर्ड है, हम बहुत सुनते हैं, इसके मार्बल के फ्लोर्स है, ये मार्बल का बना है, ये मार्बल है, ऐसे ऐसे करके। तो बेसिकली मार्बल जो है ये लाइमस्टोन में मॉडिफिकेशन की वजह से बना है। ये बहुत सारे कलर्स में हमें मिल सकता है, इसको खोदा जा सकता है, इसको अलग अलग शेप में खोदने का मतलब है हम इसको अलग अलग शेप्स दे सकते हैं, शेप्स में चेंज किया जा सकता है, और इसको पॉलिश भी इजीली किया जा सकता है, इसको अलग अलग शेप्स में मॉडिफाई किया जा सकता है। इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम इसको स्टैचूज बनाने के अंदर या फिर बिल्डिंग बनाने के अंदर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्लेट। स्लेट शेल टाइप के रॉक से बना है। शेल जो होते हैं वो स्मूथ होते हैं, क्ले से बने हुए होते हैं, तो इनका भी टेक्सचर थोड़ा थोड़ा वैसा ही होता है। ये डार्क ग्रे कलर के होते हैं और ये थिन शीट्स में इजीली चेंज किए जा सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम इनसे राइटिंग स्लेट्स बना सकते हैं, ब्लैक बोर्ड बना सकते हैं और रूफ टाइल्स बना सकते हैं। स्लेट जो हमारे पुराने बच्चे होते थे, मेरी एज के या मेरे से पहले वाले जो हमारे पेरेंट्स की एज में जो बच्चे थे, वो बेसिकली स्लेट्स यूज करते थे, बर्ता और स्लेट जो बोलते थे, तो उसी को ही लिखने के लिए यूज करते थे। पहले नोटबुक्स वगैरह, इतना पेपर वगैरह नहीं होते थे। नेक्स्ट आता है नाइस। तो यस, ये ग्रेनाइट से बना है और ये डार्क और लाइट बैंड्स का होता है। एक्चुअली क्या होता है, जब ग्रेनाइट में मॉडिफिकेशन हो रही होती है तो इसके डार्क और लाइट कलर के जो पैचेस हैं, वो जो रॉक्स हैं, वो अलग अलग हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम इन पैचेस को बहुत इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं नाइस के अंदर। एंड इट इज ऑल्सो गिविंग द ग्लिटरिंग अपीयरेंस। ये ग्लिटर की जैसे चमकदार होती है, तो हम उस तरह से भी इसको यूज कर सकते हैं। लास्ट वन इज क्वार्ट्जाइट। क्वार्ट्जाइट क्या होता है, ये सैंडस्टोन से बना हुआ है। सैंडस्टोन क्या होता है, हार्ड होता है। हार्ड होने की वजह से हम इसको स्टैचूज बनाने के अंदर यूज कर सकते हैं, ग्लास के अंदर इसको यूज किया जा सकता है, एंड सेरामिक के लिए यूज किया जा सकता है। हम ये नहीं कह सकते जो सैंडस्टोन की प्रॉपर्टी है सारी की सारी वही होंगी, यहाँ पे ग्लास के लिए भी हम इसको यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सैंडस्टोन में मॉडिफिकेशन की वजह से ये बना है। तो मॉडिफिकेशन इस तरह से हुई कि वो स्टैचूज तो बनाने का काम कर ही रहा है, लेकिन साथ में ग्लास बनाने का भी काम कर रहा है। तो ये स्टूडेंट्स, आई एम होपिंग सो कि आपको ये लेक्चर समझ आया है, मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या है आपको पता लगा है। सो यस, अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाली हूँ रिगार्डिंग द सेम मेटामॉर्फिक रॉक्स, एंड आई एम होपिंग दैट यू आर नॉट फेसिंग एनी डिफिकल्टी इन एनी ऑफ द टाइप ऑफ द रॉक्स। टुडे द टाइप ऑफ द रॉक्स आर कंप्लीटेड। हमारी रॉक्स कंप्लीट हो चुकी हैं। हमारा काफी दिनों बाद कुछ नया स्टार्ट हुआ, बिकॉज फ्रॉम लास्ट मेनी डेज आई वॉज डूइंग सम वर्कशीट, सम रिविजन। तो यस, अब मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझ आ रहा है अच्छे से। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आई एम गोइंग टू शो यू वन वीडियो, वॉट एवर द वीडियो आई एम सेंडिंग यू, वॉच द वीडियो आफ्टर माई लेक्चर। जो भी मैं यहाँ पे समझा रही हूँ उसके बाद अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। अगर आप डायरेक्ट पहले वीडियो देख के फिर मेरा लेक्चर देखोगे तो आपको नहीं समझ आएगा। सो यस,
आई एम होपिंग सो कि आपको तीनों के तीनों रॉक्स के टाइप्स जो है वो समझ आए हैं, रॉक्स क्या है वो समझ आए हैं. एंड टुडे बाय सीइंग दिस वीडियो योर concept regarding the metamorphic rocks become more and more clear. So student, this is all about for today's video. Thank you.